Okay. So let's start with this basic principles of organic chemistry, जिसको generally हम बोलेंगे general organic chemistry. This chapter is going to cover all the fundamental concepts of organic chemistry, and many of the concepts we are going to also repeat in the forthcoming chapters. जैसे इसके बहुत सारे concepts हाइड्रोकार्बन्स में भी रिपीट होंगे, 12th के जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स है उसमें भी रिपीट होंगे. So make sure that you are doing this chapter very, very thoroughly. You should become confident in all the organic concepts by the end of this chapter. And एक और चीज बता रहा हूँ, for entrance you need to do the studies regularly, you need to do the revision regularly. ऐसा नहीं है कि एक सेशन का आपने रिवीजन किया, दूसरे में नहीं किया, तीसरे में लेट गो कर दिया, बाद में करेंगे. वैसे अप्रोच रखोगे तो थिंग्स विल बिकम डिफिकल्ट एंड ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू पाइल अप, एंड देन लेटर ऑन आप सोचोगे कि मैं एक साथ बैठ के सब कुछ कर लूंगा या कर लूंगी, तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है वो चीज. इसलिए आपको ऑल्टरनेट डेज मिलता है, उसमें बैठकर मेक श्योर दैट आप अपना टाइम टेबल इस तरह से सेट करो कि जितना 1.5 घंटे में कंटेंट मैंने करवाया है या मनोज सर ने करवाया है, वो नेक्स्ट लेक्चर के पहले आपका रिवाइज हो चुका रहेगा. एंड अगर आप आगे उसको कर सकते हो खुद से, देन ऑल्सो वेल एंड गुड. जैसे मैं बताऊंगा कुछ एक्स्ट्रा चीज अगर आपको करना है, इफ यू वांट टू सॉल्व इट, देन यू कैन डेफिनेटली गो ahead एंड डू इट, so that your understanding and the application will be very easy for you. Okay. Okay. So starting with the basics of organic chemistry, the first thing is the understanding about the covalent bond. Because when we talk about organic compounds, we know that organic compounds are mainly covalent. A covalent bond, depending on the difference in electronegativity, can be classified as Polar and non-polar. polar and non-polar. And depending on the strength, they can be classified as Sigma and pi. sigma and pi. Sigma you will always observe in the single bonds, and pi you will observe in multiple bonds. Multiple bonds maybe we have double and triple bond. And we know that double bond is a combination of one Sigma and one pi. one sigma, one pi. And triple is a combination of One sigma, two pi. one sigma and two pi. ठीक है. पाई बॉन्ड्स मल्टीपल बॉन्ड्स में देखे जाते हैं, डबल में एक पाई, ट्रिपल में दो पाई होता है. ठीक है. नाउ ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, दे आर बेसिकली डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द ओवरलैप. So when I talk about the orbitals, let's say I have a p orbital. डम्बेल शेप होता है p orbital का, है कि नहीं? Yes, sir. तो जब ये p ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस ओवरलैप करता है, एक दूसरे के साथ ज्वाइन होता है, then the sharing of electron leads to the formation of a strong bond, and this is a sigma bond which we say is formed by axial overlap. क्या बोलते हैं? एक्सियल ओवरलैप. axial overlap मतलब along the same axis दो ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेगा, that is called axial Axial. overlap, and that will always have the strength very high, and that's why it is classified into a sigma bond. Whereas a pi bond is formed by parallel overlap. तो यही p ऑर्बिटल जब एक दूसरे से पैरेलल होंगे ना, तो this type of overlapping leads to a weaker bond, that means a pi bond. इसको बोलते हैं पैरेलल ओवरलैप, या फिर एक और नाम दिया गया है लेटरल ओवरलैप. फाइन. Yes, sir. Can you wait 1 second, sir? I have to एक्शियल copy. ओवरलैप में द स्ट्रेंथ इज ग्रेटर. पैरेलल ओवरलैप में आप देख सकते हो जो ओवरलैप हो रहा है दैट इज लिमिटेड, एंड दैट इज व्हाई इसका स्ट्रेंथ वीकर होता है. Hence, a sigma bond is formed by axial overlap. It's a strong bond, and a pi bond is formed by lateral या parallel overlap, which is a weak bond. Understood? Next topic है types of carbon atoms. Now, in a hydrocarbon, alkane,
if I ask you how many types of carbon atoms were there, what was the answer? 4. And what were they named as? Primary, secondary, tertiary, quaternary. Correct. Primary, secondary, tertiary, and quaternary. Quaternary. And how do you identify a primary carbon? कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 3. 3. मतलब CH3 वाला कार्बन इज Primary. प्राइमरी, CH2 Secondary. Secondary. सेकेंडरी, CH So Tertiary. टर्शियरी, C quaternary. Quaternary. इज क्वाटरनरी. तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देख सकते हो all the 4 types of carbons are visible. A primary is that which is attached to only one carbon. तो कार्बन जो टेट्रावैलेंट होता है उसकी वैलेंसी अगर सेटिस्फाई करें तो एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन के साथ, इसीलिए प्राइमरी इज CH3, secondary will be CH2, tertiary will be CH, and quaternary will be C. Got it? Yes. And तीसरा छोटा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन. नाउ इसके बारे में डिटेलिंग मैं केमिकल बॉन्डिंग में बताऊंगा, बट हाइब्रिडाइजेशन का एक सिंपल अप्रोच मैंने ऑलरेडी बता दिया. व्हाट वर द टाइप्स? sp2 sp3 Yes, sir. sp बस sp तीन sp है, sp3, sp2 और sp. और शॉर्टकट ये है कि अ कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज sp3. sp3 sp3. Double bond sp sp2 So it was sp2, and a triple bond in an alkyne sp will be SP. sp. ठीक है. अब अगर आप sp2 को देखोगे तो इट इज अंडरस्टूड विद द प्रेजेंस ऑफ वन पाई बॉन्ड. sp2 हमेशा उस कार्बन को बोलोगे जहां पर एक पाई बॉन्ड होगा, और sp में हमेशा देयर विल बी 2 pi पाई bonds. Pi बॉन्ड्स. तो अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास H2C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 वाला कंपाउंड है, ठीक है, तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2. sp2 sp2, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है. ये वाले कार्बन का sp. sp हो जाएगा, because now this carbon is having 2 double bonds, which means there are 2 sigma and 2 pi. और कोई भी केस में अगर 2 पाई बॉन्ड आता है मतलब वो हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा. मतलब ट्रिपल बॉन्ड और अ कार्बन हैविंग 2 डबल बॉन्ड्स विल बी sp. अंडरस्टूड? Yes. Sir, can you explain once again? अरे भाई, इस कार्बन में देयर इज 1 सिग्मा 1 पाई ऑन लेफ्ट, 1 सिग्मा 1 पाई ऑन राइट. तो टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हो गए इस कार्बन पे? 2 तो 2 पाई बॉन्ड्स, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? Okay, sir. SP got it. तो नाउ so लेट्स so then what is sp2d and spd? that we are going to discuss later, not now. With regards to carbon in organic chemistry, the hybridization is restricted to only 3 types. Okay. जैसे हम दूसरे कोई एलिमेंट में आएंगे तो d ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट भी आता है, उस केस में वी विल अपग्रेड. ठीक है, वो ब्लॉक एलिमेंट्स में समझेगा आपको, डोंट वरी. Yes, sir. ओके, नाउ इससे पर्टेनिंग जो कॉन्सेप्ट्स है उसके एमसीक्यूज आई एम टेकिंग. अब एमसीक्यूज इन द बुकलेट आर क्लासिफाइड इनटू 3 मॉड्यूल्स. मॉड्यूल 1 क्लास वर्क, मॉड्यूल 1 होमवर्क, एंड मॉड्यूल 3 प्रीवियस ईयर्स. प्रीवियस ईयर्स अप टू 2019 कवर किया गया है. 2020 और 21 का एक एडिशनल बुकलेट मैं बाद में प्रोवाइड करूंगा. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. The number of sigma and pi bonds in the following molecule is respectively. तो सबसे easy observation is to identify the double pi bond. bonds. And pi bonds कितने होंगे? Equal to the number of 6. double bonds. तो 6 pi bond है, वो तो क्लियर दिख रहा है, 1 2 Yes, 3 sir. 4 5 and 6. अब 6 pi bond है मतलब 2 ऑप्शन तो रूल आउट हो गए.
ठीक है, अब आइदर सिग्मा बॉन्ड्स 19 है या 20 है वो आपको कंफर्म करना है। तो सिग्मा बॉन्ड्स आर ऑल द बॉन्ड्स विच आर सिंगल या फिर मल्टीपल में भी एक सिग्मा होता है। तो इस पर्टिकुलर रिंग में देयर विल बी 6 सिग्मा बॉन्ड्स। बाजू वाले रिंग में 1 2 3 4 और 5 11 हो गए। ये वाले डबल में सिग्मा, ये वाले डबल में सिग्मा, 12 और 13। एंड डोंट फॉरगेट द बॉन्ड्स ऑफ Of कार्बन hydrogen. टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सो तो यहाँ पर जो CH है वो 6 होंगे, राइट। देखो 6 पोजीशन पे Yes, sir. हाइड्रोजन है, तो 13 तो वो गिने थे प्लस 6 हाइड्रोजन के सिग्मा, 19. दैट इज 19। 19 So the बॉन्ड। answer is 19 sigma and 6 pi bonds. Total bonds पूछा होता तो 25, sigma और pi individual पूछा है तो 19 and 6 respectively. समझा? Yes. Next. The number of primary, secondary and tertiary carbons in the following structure are respectively. Primary मतलब CH3. there are 3 of them. Secondary CH2. अब रिंग में आपको हाइड्रोजन तो दिख नहीं रहे हैं, तो उस केस में हमेशा क्या करने का, राइट द कार्बन, लुक एट द बॉन्ड्स और 4 में से माइनस करो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन मिलेंगे 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, और इस केस में C के साथ एक ही H रहेगा ना। Yes. यस यस। तो बताओ सेकेंडरी कितने हैं 6, और टर्शियरी? 3, 3. 300। तो यहाँ प्राइमरी 3 है, सेकेंडरी 6 है और टर्शियरी 3 है। 363 Option सेकंड B. ऑप्शन। So the correct option is second. Clear? Yes. Next. Which of the following compound has sp, sp2 and sp3 hybrid carbon atoms? First. Fourth. Which one? First. First, yes. First option correct है because ये वाला example मैं already बता चुका हूँ ना। यस सर। The first and the third carbon is sp2, but middle वाला sp3 carbon sp होगा। sp और सर ये जो कार्बन सिंगल बॉन्ड्स है वो sp3 300 वाले हैं। तो ये वाले मॉलिक्यूल में तीनों टाइप के हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स है। ठीक है, तो आंसर तो मिल गया। अब बाकी ऑप्शन की बात करता हूँ। तो ये इस sp is पर्टिकुलर not क्वेश्चन में sp नहीं है, sp3 है और sp2 है। नेक्स्ट में sp2 नहीं है। sp2 नहीं है, sp3 और sp है। और नेक्स्ट में sp3. sp3 सर। sp3 नहीं है, तो sp2 है और sp है। समझा? यस सर। तो कभी भी एमसीक्यू सॉल्व करो ना, तो आंसर मिलने के बाद बाकी ऑप्शंस करेक्ट क्यों नहीं है, अगर वो एनालिसिस भी करोगे ना, तो इट विल हेल्प यू टू सॉल्व अदर एमसीक्यूज इन अ बेटर एंड अ फास्टर मैनर। So do the analysis of all the option. That is very helpful. Next, which is not the homologue of propene. Homologue क्या होता है? Whose successor or predecessor Same differs family. by CH2. Correct. A series in which the consecutive or the successive members differ by a CH2 is called homologous series, and each member is called a homologue. ठीक है, तो propene has a molecular formula C3H 8. 6, 8 नहीं, 6. H2N होता है H6। तो इसके पहले वाला होमोलोग कौन सा होगा? ethene, Ethene. इथीन। C2H4. बाद वाला, ब्यूटीन। उसके बाद वाला, पेंटीन। उसके बाद वाला, हेक्सीन। एंड सो ऑन। हेप्टीन। ठीक है, मतलब ये सीरीज में इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन एंड सो ऑन आना चाहिए। तो होमोलोग कौन सा नहीं है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस? Cyclopropane. साइक्लोप्रोपेन। इन फैक्ट अगर आप साइक्लोप्रोपेन देखेंगे तो दिस इज हैविंग 3 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन, मतलब
प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. सेम ही है, Yes. तो ये इसका होमोलॉग नहीं हो सकता. So, but how can an alkane also be a Yeah. process of alkene? See, basically, propene and cycloalkanes are, rather, alkene and cycloalkanes are the isomers of each other because they also have the same molecular formula. Okay. तो इसीलिए C3H6 यहाँ पर मैच हो रहा है. मतलब अगर साइक्लोब्यूटेन की बात करूं तो वो भी उसका होमोलॉग माना जा सकता है बिकॉज डिफरेंस CH2 का है. Okay. If cyclobutane would be that, then it would be a procedure considered. Yes. Successor. Okay, sir. Section B covers classification and common name of organic compounds. Now, if you remember, organic compounds were classified firstly on the basis of type of carbon. So what was the first category? Cyclic and acyclic. Cyclic and acyclic. Acyclic को और एक क्या बोलते थे? Aliphatic. Aliphatic. एलिसाइक्लिक अलग है, एलिसाइक्लिक अलग है, एलिफैटिक बोलते हैं. तो ओपन चेन एसाइक्लिक एलिफैटिक एक ही होता है वर्सेस साइक्लिक या रिंग कंपाउंड्स ऑन द अदर साइड. नाउ द एलिफैटिक based on the type of bonds were classified into Saturated, unsaturated. saturated and unsaturated. Cyclic were classified into Homocyclic, heterocyclic. homocyclic and heterocyclic. Heterocyclic. और इसके अंदर भी they were further classified into alicyclic and aromatic. Aromatic. Alicyclic वो होता है जिसमें the carbon atoms can be joined by single or double or triple. Aromatic में the double bonds and single bonds are placed Alternately. alternately. Homo मतलब the ring will contain only Carbon atoms. carbon atom. Hetero का मतलब at least One should be like An element other than carbon atom. correct. एक नॉन कार्बन एटम होना चाहिए, ऑक्सीजन, Yes, sir. नाइट्रोजन, सल्फर और एनी अदर एटम. ठीक है, तो ये एक जनरल क्लासिफिकेशन था. अब एमसीक्यूज को देखकर वी विल अंडरस्टैंड. द ग्रुप ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स इज हेटेरोसाइक्लिक. सेकंड ऑप्शन. अब अगर चारों ऑप्शंस को देखें तो फिनॉल कौन से टाइप में कैटेगराइज करोगे? Aromatic. Aromatic. एरोमेटिक में होमोसाइक्लिक या हेटेरोसाइक्लिक? Homocyclic. Homocyclic. Do we consider this oxygen as heteroatom? No, sir. No. Because it is outside the ring. हाँ, it is outside the ring. तो रिंग के अंदर अगर नॉन कार्बन है तो वो हेटेरो होगा. ये तो बेंजीन है जो कि पूरा कार्बन से बना हुआ है, तो ये एरोमेटिक होमोसाइक्लिक होगा. ठीक है. प्यूरान क्या कंपाउंड था? Aromatic heterocyclic. With O. करेक्ट. 5 मेंबर्ड रिंग एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक था. थायोफिन फ्यूरान के जैसा ही होता है, खाली ऑक्सीजन उड़ाओ, Sulfur. 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 सल्फर लगाओ, तो ये भी एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक होगा. और एनिलीन NH2 on benzene. Cyclic. एरोमेटिक और होमोसाइक्लिक. तो ये आपके होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे and furan and thiophene will be heterocyclic. That's why the answer is 2. Okay, so you got to know the names and the structure of the compounds. मैंने piperidine example दिया था, tetrahydrofuran, all those structures with the names should be remembered. Next, identify the compound which is homocyclic, aromatic and unsaturated. Second. Second benzene. One. Benzene. तब बोलो फर्स्ट को क्या क्लासिफाई करोगे? So, Homocyclic. alicyclic. Homocyclic. होमो में Saturated. क्या? Saturated. Actually, saturated. होमो एलिसाइक्लिक और सैचुरेटेड. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड वाला Heterocyclic. Heterocyclic. Cyclic. हेटेरो व्हाट? एलिसाइक्लिक, Non-aromatic. एरोमेटिक? Non-aromatic. Non-aromatic. नॉन एरोमेटिक नहीं, एलिसाइक्लिक ना. Alicyclic. Alicyclic. नॉन एरोमेटिक मतलब एलिसाइक्लिक, तो हेटेरो और एलिसाइक्लिक है ना. Yes, नेक्स्ट sir. This is not cyclic only.
तो क्या Acyclic. क्या क्लासिफाई करोगे? Unsaturated acyclic. एलिफेटिक, एसाइक्लिक मतलब एलिफेटिक और Unsa- अनसैचुरेटेड। Unsaturated. परफेक्ट, गुड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आंसर मिलने के बाद बाकी ऑप्शंस को भी एनालाइज करवा रहा हूँ, ताकि और कोई क्वेश्चंस अगर इसके रिलेटेड हो तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व देम। वही मैं बोल रहा हूँ, एनालिसिस ऑफ अदर ऑप्शन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेलो। Yes, sir. Yes. नेक्स्ट, indicate the following as a secondary alcohol. Now, जैसे ही फंक्शनल ग्रुप लग जाता है तो प्राइमरी क्या हो जाता है? CH2. CH2. बिकॉज जो अल्केन में प्राइमरी था दैट वाज CH3। अब फंक्शनल ग्रुप लगने के वजह से हाइड्रोजन कम हो जाता है। तो मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ ना, प्राइमरी मतलब फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राइमरी मतलब CH2. CH2. CH2, सेकेंडरी मतलब CH. 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 CH, और टर्शियरी मतलब C. E. C। अब कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा दो, उसका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आइडेंटिफाई करना आसान है, राइट? So tell me, which is a secondary Yes. alcohol from the options? First. First. Second. नहीं, it's first one. First one, sir. साइक्लिक रिंग में अगर आपको समझ में नहीं आता है कि वो CH है, CH2 है या CH3 है, क्या बोलता हूं मैं, कार्बन लिखो खाली। अब 3 बॉन्ड्स दिखे मतलब बचा हुआ एक हाइड्रोजन ना, CHOH Yes, sir. क्लियर The दिखता third है। one. ए भाई आंसर फर्स्ट है, रुक जा। आंसर तो हो गया ना सेकेंडरी अल्कोहल। Yes, yes. Yes, sir. उसके बाद यहाँ C लिखोगे तो ये टर्शियरी बन जाएगा, यहाँ पे C लिखोगे तो Primary. H2 है तो प्राइमरी बन जाएगा ना। कोई डाउट है क्या इसमें? No, sir. Sir, what is the ME? Me is the abbreviation for methyl. Me is the abbreviation for methyl, वैसे ही ET will be abbreviation for, Ethyl. Ethyl. PR will be abbreviation for Propyl. propyl, PH will be abbreviation for Phenol. Phenyl. Phenol. phenol नहीं, phenyl। सिर्फ बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से होगा ना तो PH मतलब फिनाइल होगा। ठीक है, तो ये ME, ET, PR, PH, these are all short abbreviation, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, फिनाइल के लिए, राइट? कीप रिस्पॉन्डिंग। Yes, sir. Yes. Next, identify the tertiary amine. Now, amines में the classification is done on the basis of hydrogen bonded to nitrogen. अमाइन एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है तो उनका क्लासिफिकेशन नाइट्रोजन के हिसाब से किया जाता है। मतलब अ प्राइमरी अमाइन विल हैव अ फंक्शनल ग्रुप NH2, secondary will have N with one hydrogen and tertiary N without any hydrogen। ठीक है, बाकी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्राइमरी CH2 होता है कार्बन के हिसाब से, अमाइन में प्राइमरी NH2 होता है नाइट्रोजन के हिसाब से। समझा? Yes, sir. Yes. तो बोलो आंसर क्या होगा? Fourth one. Option. Fourth. Fourth one, because there is just a nitrogen bonded to 3 carbon। अब बाकी ऑप्शन, what is this? Secondary. Secondary. NH मतलब secondary, Secondary. secondary, Secondary. Secondary. secondary, बाकी तीनों secondary थे। Next, coming to the IUPAC nomenclature. Now, alkanes, kenes और kynes, ये जो हाइड्रोकार्बन्स है ना, उनके नोमेनक्लेचर के लिए तो दो सिंपल से रूल्स अप्लाई करने हैं। The first thing is always the selection of Longest chain. longest chain of carbon atoms। तो अल्केन में as such कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, you will select that chain which has maximum number of carbon। अल्कीन अगर होगा तो you will select the chain which is having the double bond in it।
because that is the functional group. Alkyne में you will select the chain with the triple bond because वो उसका functional group है. ठीक है? Now once you Yes, select sir. the longest chain, what is the next thing to do? Substitute. Position of radical functional group. Correct. Position of the radical or the functional group or the substituents. And for that, we will number in such a way that the substituents get the Least number. least number. तो second rule है lowest numbering rule. तो हाइड्रोकार्बन्स का nomenclature करने के लिए the rules are simple. The first thing is longest chain and the second thing is lowest numbering rule. But now, if a compound has functional groups present और एक से ज्यादा functional groups हैं, तो क्या करते हैं? Take the priority. Substituent and this would be. Priority. Order of priority. Priority order check करते हैं. और प्रायोरिटी के हिसाब से एक फंक्शनल ग्रुप बनेगा आपका मेन फंक्शनल ग्रुप एंड रेस्ट ऑल द अदर फंक्शनल ग्रुप विल बिकम देयर Substituent. जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए सफिक्स यूज होता है और जो सब्स्टिट्यूएंट वाले फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए प्रीफिक्स यूज होता है. अब बेस्ड ऑन दैट मैंने आपको एक 5 पार्ट का एक जनरल IUPAC नेम करने का पार्ट कॉन्सेप्ट बताया था. कैन समवन टेल मी व्हाट वर द 5 पार्ट्स इन द नेमिंग? 2 degree prefix, 1 degree prefix. Cyclo if it is. Root name, 1 degree suffix, 2 degree suffix. Perfect. This was the Brahmastra to name the Yes, sir. organic This compound. only. है ना? So 2 Yes, degree yes. prefix includes all the substituents. तो जितने भी substituents है वो nomenclature में सबसे पहले आएंगे. उसके बाद 1 degree prefix indicates the nature of molecule. अगर cyclic है तो we will use the word cyclo और acyclic है तो ये वाला prefix apply नहीं होगा. ठीक है? Then जो भी आपका longest chain है उसका जो कार्बन एटम्स है दैट विल बिकम द वर्ड रूट. इसको बोलते हैं कार्बन का मेन स्केलेटन. ठीक है? तो 5 कार्बन का स्केलेटन बना तो वो पेंट आएगा, 7 का होगा तो हेप्ट आएगा, 10 का होगा तो डेक आएगा. उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स इंडिकेट्स द टाइप ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन. अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन में तो एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड के लिए ईन लिखेंगे और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखेंगे. और जो ई को हम ड्रॉप करते हैं उसकी जगह पर सेकेंडरी सफिक्स आ जाएगा जो कि मेन फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करेगा. समझा? Yes, sir. ठीक है? तो इसको अप्लाई करने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं. Now this is given in the synopsis 12.2 चैप्टर जिसका पीडीएफ मैंने सेंड किया है. ABC ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसका पहले पेज पे ये दिया हुआ है. So whatever I am discussing in the session, they are from the notes itself. Synopsis और MCQ को साथ में लेकर चल रहा हूँ. ठीक है? तो confusion? No, sir. Okay. So now for a polyfunctional compound, जहाँ एक से ज़्यादा functional groups हैं, वहाँ पर we need to always remember this priority order. उसको याद रखने के लिए मैंने रो वाइज आपको बोला था याद रखो, है ना? द फर्स्ट रो इंक्लूड्स कार्बोक्सिलिक एसिड फॉलोड बाय Sulfonic acid. सल्फोनिक एसिड Ester. एंड देन सेकंड वाले रो को याद रखने के लिए कैन बोला था, कैन व्हिच इंक्लूड्स Acyl chloride, Acyl chloride. Amide. 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 Nitrile. cyanide which is also called nitrile. तो CAN मतलब acyl chloride, amide और nitrile. Then AK indicates Aldehyde. aldehyde Ketone. and double A Alcohol. Amine. alcohol and amine followed by
Alkene. Alkene, alkyl. And then there are 4 functional groups which are having the least priority: halogen, nitro, methoxy and alkyl. तो ये जो लीस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप्स है उनके से प्रीफिक्स आते हैं, सफिक्स नहीं होता है। जैसे हैलोजन आइटम अगर रहेगा तो हैलो लिखेंगे, क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। NO2 होगा तो नाइट्रो एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? Methoxy. Oxy. methoxy, superb. And alkyl, Alkoxy. ना 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 ना, अल्कोक्सी तो इसी को बोलेंगे ना, OR को जनरल। Sorry, alkyl. आ तो सिर्फ R होगा तो अल्काइल होगा, OR होगा तो अल्कोक्सी होगा। फाइन विद दिस? Yes. तो हर फंक्शनल ग्रुप के 2 चीज बताए थे, एक सफिक्स और दूसरा प्रीफिक्स। जैसे NH2 के लिए द सफिक्स इज Amino. सफिक्स मेन फंक्शनल ग्रुप का नाम Amine. अमाइन। और अगर वो सब्स्टिट्यूएंट है, बच्चा है, तो Amino. अमाइनो। और वैसे हर एक फंक्शनल ग्रुप का मैंने दिया था, ठीक है? तो वो MCQs के साथ वापस बताऊंगा। नाउ लुक एट दिस। तो ऐसा अगर एग्जांपल है जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तो स्टेप नंबर 1, ऑलवेज एनालाइज और ऑब्जर्व ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट। बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप्स है? So 4 4। 3 functional group and and one three functional group and one double bond. 3 functional group and 1 double bond. no, 3 functional. No, 3 functional group including double Including bond. double One bond. substituent, 3 functional groups. And can you name the functional groups as I highlight them? Ketone. Then Acyl chloride. No, that is Alkene. alkene and chloro. this is not acyl chloride भाई, this is only chloro, अकेला है वो। अगर C डबल बॉन्ड O के साथ होता ना तो असाइल क्लोराइड बोलेंगे। ये साथ में किधर है? अलग अलग है ना। Yes. नो, हेलो। Yes. Yes, sir. Yes. So there are 3 functional groups: ketone, alkene and chloro. Now next step is to identify the priority, and the highest priority goes to Ketone. ketone. That's why we have numbered starting from ketone. अब clockwise जाना है कि anti clockwise? Anti-clockwise. Anti-clockwise. Even the double bond, which is the next higher priority, should get the lowest number. Lowest तो number. clockwise में जाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो नंबरिंग कर दिया। अब कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है टोटल? 2। क्लोरो के अलावा ये क्या है? CH3. Methyl Me, free radical. मिथाइल है, ठीक है? तो सबसे पहले ब्रह्मास्त्र में 2 डिग्री प्रीफिक्स आता है, which indicates the substituents, और 2 substituents हैं। And if there are multiple substituents, they have to be arranged in Alphabetic. alphabetical order. तो 6 पे क्लोरो और मिथाइल में क्लोरो पहले आएगा और फिर मिथाइल आएगा। उसके बाद is the 1 degree prefix applicable? Yes. Yes, because the nature of molecule is cyclic, तो cyclo आया। Then word root, Eggs. hex, in नहीं, खाली hex। root मतलब खाली 2 मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स ऐसे लिखते हैं। उसके बाद रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है तो 2 in. और मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो 1 अनोन। तो इस एग्जांपल से पूरा जो प्रीफिक्स और सफिक्स वाला कॉन्सेप्ट है वो इंक्लूड हो जाता है। मैं वापस ब्रेक करके बताता हूँ। दिस 6 chloro and 6 methyl indicates the substituents, followed by the nature of molecule, then the word root, then the 1 degree suffix followed by 2 degree suffix। आ गए ना पांचों पार्ट? Yes, sir. अब नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट में we have a cyclopentene with 2 methyl groups. Tell me what will be the number for the methyl groups? 1 and 2.
1 and 2 नहीं पॉसिबल है. 2 and 2 and 3. 3. 2 and 3. 1 and 2 करोगे तो 1 यहाँ पर दोगे, 2 यहाँ पर दोगे, तो डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में होता है. तो ये नंबरिंग गलत हुआ ना चिरायो. Yes, sir. Yes, sir. Understood. तो डबल बॉन्ड यहाँ पर 1 2 3 4 and 5. ठीक है. तो इसके हिसाब से द नेम विल बी 2,3 डाइमीथाइल साइक्लो पेंट And 1 1 इन. करेक्ट. ऐसा नाम आना चाहिए, लेकिन ये नाम गलत है. अब ध्यान दो to one new rule which I am introducing. यहां पर मैंने सब्स्टिट्यूएंट्स को 2 और 3 नंबर दिया. अगर मैं ये नंबरिंग को थोड़ा सा चेंज करूं, I number it as starting from this methyl group as 1 2 3 4 and 5. What are the substituents number now? 1, 1 and 5. 5. 1 and 5. तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स के दो नंबरिंग आए, एक 2 और 3 और दूसरा 1 and 5. बराबर. Now as per lowest numbering हम sum of the locants को चेक करते हैं. तो 2 and 3 का सम 5 होता है and 1 and 5 का सम 6 होता है. उसके हिसाब से 2 3 करेक्ट है. लेकिन साइक्लिक रिंग के अंदर अगर मैं इसको नंबरिंग क्लॉकवाइज में करता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट्स आर गेटिंग 1 and 5, wherein the first substituent is getting the position 1. पहला सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 1 मिल रहा है और जो एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग था उसमें फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 2 मिल रहा है. तो यहां पर एक रूल आता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जो बोलता है कि अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबरिंग is done in such a way that you are getting the first substituent lower number even though the sum is higher, then that is going to be the correct numbering. अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे उसमें पहले सब्स्टिट्यूएंट को नंबर लोअर मिल रहा है, चाहे उसका सम हायर हो, तो भी वही आपका करेक्ट नंबरिंग होगा. तो इस हिसाब से द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1,5 डाइमीथाइल. डबल बॉन्ड के पोजीशन में कोई फर्क नहीं आ रहा है, साइक्लोपेंट 1 इन. ये है आपका करेक्ट नेम एंड द रूल फॉर दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस. आर यू क्लियर विद दिस एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल था जहां पर एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया है. नॉर्मली ये साइक्लिक कंपाउंड्स में ऑब्जर्व्ड होगा और डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम रखते हुए अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट्स में पहले सब्स्टिट्यूएंट का नंबर लोअर है तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस की वजह से वो प्रायोरिटी हो जाएगा, वो करेक्ट नॉमेनक्लेचर हो जाएगा. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. So this is only in the chain compounds, right? Like the closed chain compounds. नहीं, ये ओपन चेन में भी हो सकता है बट नॉर्मली ये साइक्लिक में ज्यादा देखने मिलेगा. अब मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ जिससे क्लियर होगा. लेट मी कम टू द एग्जांपल. लुक एट दिस. सो नाउ वी स्विच बैक टू द एमसीक्यूज. IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड इज, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए? Longest chain. Longest. नहीं, लॉन्गेस्ट चेन के पहले भी Functional group. फंक्शनल. How many functional groups are present? हाँ, हमेशा पॉलीफंक्शनल में पहला स्टेप आपका हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स का होगा एंड द आंसर इज 2. They are substitutes. 2. Though they are substituents but they are the functional group with the least priority. हम इसको सब्स्टिट्यूएंट मान के ही चलेंगे नॉमेनक्लेचर के टाइम. ठीक है. Yes, sir. हाँ, अब मुझे बताओ नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से या राइट से? Right. Left, to left. left, right. Right to left. अगर मैं लेफ्ट टू राइट करता हूं तो द सब्स्टिट्यूएंट, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, उसके पोजीशन Yes, क्या sir. आ रहे हैं देखो. 2 आएगा, 3 So 2, आएगा 3. Yeah. और 7. 7. और अगर मैं राइट से करूं So 1,
6, 1, 6, and 7. 1, 5, 6. 1, 5, 6. Yes. तो अब मुझे बताओ करेक्ट नंबरिंग कौन सा है? 1, 5, 6. 1, 5, 156. 1, 5, 6. अब देखो इसमें सम ऑफ लोकेंट्स देखोगे ना, दोनों में 12 हो रहा है, 12. कि नहीं? yes sir, 12, 12. ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी फर्स्ट ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंस से करेक्ट नंबरिंग राइट वाला है। पहला सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग लोअर मिलना चाहिए, तो 1 वाला ही करेक्ट हुआ ना। Yes sir. तो ओपन चेन में भी देखो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अप्लाई कर दिया मैंने। So over here that rule will be applied, right? Which we Yes, just studied. फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बोल रहा हूँ ना। Yes sir, yes sir. So even Tell if me the the sum correct of name. locants is more, we follow the same rule. सॉरी, Even if the sum of locants is more, we have to follow the same rule. यस, पहला सब्स्टिट्यूएंट को नंबर लोअर होना चाहिए, चाहे सम हायर हो फर्क नहीं पड़ता। वही तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। Got it? So tell me the correct name. 1 BD. 1 bromo 6 chloro5 1 bromo 6 chloro 5 methyl heptane. Next, IUPAC name of third butyl chloride is. अब यहाँ पर नाम दिया है, तो पहले तो नाम से स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसका IUPAC नेम करेंगे, दो चीज है। So how do we draw third butyl? अल्काइल कैसे ड्रॉ करेंगे थर्ड We ब्यूटाइल? draw it in a 4 Cl and a Cl. 3 inner streets in 1 branch and on 1 chlorine. C with a Cl will be a tertiary chloride, और इस C के ऊपर ब्यूटाइल के हिसाब से 3 मिथाइल ग्रुप आएगा। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज योर थर्ड ब्यूटाइल, और फिर क्लोरीन अटैच कर दिया, थर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। समझा? yes sir. अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन बोलो कितने का? 3. Number atoms. 3, और नंबरिंग कहीं से भी करे चलेगा बिकॉज सिमेट्रिकल है। तब इसका नाम 2 chloro 2 methyl. 2 chloro 2 Chloro methyl. methyl. But the longest chain shouldn't contain chlorine. सॉरी, Longest chain should not be part of like chlorine. it is containing chlorine. You can't include chlorine in the chain na, because chlorine doesn't have a carbon. ये चेन में क्लोरीन बॉन्डेड है ना, तो क्लोरीन इज अ पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। इट इज नॉट पार्ट इन द सेंस इट इज कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन, बट लॉन्गेस्ट sir, चेन understood. में क्लोरीन नहीं आ सकता ना। समझा? Yes. Next, the correct structure of 6-ethyl 2,3,5 trimethyl nonane is. So you have to find a chain of 9 carbon with 4 substituents, 1 ethyl and 3 methyl as per the positions given. मुझे बताओ फर्स्ट केस में are we getting a longest chain of 9 carbon? No. Yes. No. Yes sir. Yes. Yes, sir. Yes. Let's check. इस बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में if I start from this carbon, चेन कितने का बन रहा है वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो 1 2 It will be 9. 4 5 6 7 8 9 हो रहा है 9 कार्बन पेरेंट। और अब नंबरिंग कहाँ से करें, लेफ्ट से या राइट से? Right. Right. बिकॉज द सब्स्टिट्यूएंट्स आर क्लोजर टू द राइट। लोएस्ट नंबरिंग रूल अप्लाई करने पर आपको राइट से नंबरिंग आएगा। नाउ वेरीफाई करो, इज इट मैचिंग विद द Yes sir, is the Yes, first sir. one. नेम गिवन? यस। 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल और 6 पे इथाइल। So we do have 6 ethyl 2,3,5 trimethyl nonane as the name. तो ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलो सेकेंड भी है, मैं जस्ट ट्राई करके बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 या 5 6 7 8 या 6 7 8 9 मिल रहा है 9। Yes. Yes, sir. और यहाँ पर भी नंबरिंग राइट से करेंगे। 1 2 3 4 5
6, 7, 8 and 9. अब पोजीशन देखेंगे तो 3, 4 और 6 पे ट्राइमिथाइल है और 5 पे आपका प्रोपाइल ग्रुप हो गया ना ये, Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो डेफिनेटली मैच नहीं करेगा। और वैसे ही थर्ड एंड फोर्थ में भी देयर विल बी अ गड़बड़ विथ रिस्पेक्ट टू द सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर, और मे बी सब्स्टिट्यूएंट होंगे। नेक्स्ट, a student named a certain compound as 2,3-diethyl butane. Its correct IUPAC name is, क्या करेंगे इसके लिए? Draw the structure. First, with two First you have ethyl to draw on the 2 structure and and then correct the name. तो नाम से स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले 4 carbons. Skeleton. 4 carbon Skeleton. butyl, then 4 का बनाओ, then second and third पे ethyl. ethyl इंट्रोड्यूस कर लो, and ethyl always write CH2 CH3, don't write C2H5, otherwise longest chain में गड़बड़ होगा। ठीक है, तो skeleton तैयार, बॉडी बना दिया, now we have got the molecule। अब इसमें longest chain actually कितने कार्बन 6 का होगा? carbon. 6 what shape should you get? U. U shape. अब इसमें अगर यहां से यहां देखोगे ना तो 5 मिलेगा, जो बहुत कॉमन मिस्टेक है। ऊपर से शुरू किया लेकिन यहाँ पे एंड किया। तो बेसिकली लॉन्गेस्ट चेन के लिए यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी कार्बन एंड एट एनी कार्बन, सिर्फ कंडीशन है कि मैक्स होना चाहिए। तो इस केस में आप एल शेप नहीं देखोगे, यू शेप देखोगे। क्लियर? और ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो इसको नंबरिंग कहीं से भी करो सेम ही आएगा। नाउ टेल मी द नेम। 3, 4 dimethyl hexane. Hexane, second one. हेक्सेन। तो पेंटेन और ब्यूटेन के पेरेंट जो है वो तो कैंसिल ही हो गए थे। अब 2 ही ऑप्शन बचे थे, एक 2, 3 और दूसरा 3, 4। करेक्ट है 3, 4 वाला। नेक्स्ट, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अब अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स है तो डाइन या ट्राइन लिखेंगे, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तो डाइआइन ट्राइआइन लिखेंगे। लेकिन अगर डबल और ट्रिपल साथ में है तो कैसे लिखते हैं? Anion. Priority to double. Priority to double, and we write it as Anion. alkyne। तो ये भी हम थियरी में बहुत सारे एग्जांपल कर चुके हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2 ethyl 3 methyl hexa 1,4-diene is, चेक करो। Third one. यस, करेक्ट आंसर थर्ड वन है। 2 डबल बॉन्ड्स है तो यू विल सिलेक्ट द चेन व्हिच इज हैविंग बोथ द डबल बॉन्ड्स इंक्लूडेड इन इट। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई 7 कार्बन का चेन मिल रहा है तो आप वो सिलेक्ट कर लो, समझा? जैसे अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 का पेरेंट बन रहा है लेकिन उसमें एक ही डबल बॉन्ड आ रहा है, और ये 6 का कार्बन बन रहा है लेकिन दोनों डबल बॉन्ड आ रहा है। तो करेक्ट कौन सा करोगे? Chain of 6 carbon. Chain of 6 carbon, and numbering will be done from Left. Left to right. because the double bond should get the lowest Lowest possible number. Lowest. तो यहाँ पर देखोगे तो 2 पे इथाइल, 3 पे मिथाइल, एंड हेक्सा 1 and 3 डाइन, सॉरी 1 and 4 डाइन इज करेक्ट, मतलब आंसर है थर्ड। फर्स्ट में अगर मैं डबल बॉन्ड्स को सिलेक्ट कर लूं इन द लॉन्गेस्ट चेन तो अब 2 पे इथाइल है और 4 पे मिथाइल है, मिसमैच है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 2 पे मिथाइल है, 3 पे इथाइल है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 पे मिथाइल है और 4 पे इथाइल है, तो लोकेंट्स का मिसमैच है यहाँ पर। फाइन। Yes. नेक्स्ट, नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन। सबसे पहले, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स डू यू सी? 4, 4 गलत। 3, 1. 3,
हैलोजन को भी फिलहाल फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करो, Six. though they Four. are least priority, Six. but it is a functional group. Six. Answer is 6. Six. It's iodo, fluoro, Fluoro. chloro, Fluoro. alkene, Double bond. alkyne, and CH3. toxic. Toxic. ठीक है. अब next step So- is priority, and the highest priority goes to Double bond. Double bond. Double bond. methoxy. कैसे priority होता है भाई? double bond. Methoxy has no priority. It's of Methoxy least is of the priority. least priority. उसके पहले तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है. Yes, sir. तो अगर मैं यहाँ पर प्रायोरिटी की बात करूं तो डबल बॉन्ड हैज अ प्रायोरिटी, देन द ट्रिपल बॉन्ड, देन कम्स हैलोजन एंड मिथॉक्सी एट द सेम लेवल. तो हाईएस्ट प्रायोरिटी तो इसको जाएगा ना, हाँ कि नहीं? Yes. एंड नाउ नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम विच साइड? Left to right. Left to Left hand right. side. लेफ्ट टू राइट. सो 1 2 3 and 4. तो 1 पे आयोडो, 1 पे फ्लोरो, 2 पे क्लोरो, 4 पे मिथॉक्सी. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लो. एंड देन वी हैव ब्यूट 1 in 3-ine. But 1 in 3-ine, right? Yes. बताओ which will be the correct answer? First. Fourth First one. Fourth one. Fourth one. कैसे भाई? Fourth one. अरे नंबर समझता है कि नहीं? 1 आयोडो, 1 फ्लोरो, First 2 one. क्लोरो. फर्स्ट कैसे है? Fourth one. आंसर फोर्थ है. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 2 क्लोरो, 1 फ्लोरो, 1 आयोडो एंड 4 मिथाइल मिथॉक्सी एंड ब्यूट E9. अब आप बोलोगे यहाँ पर नंबरिंग तो दिया नहीं है. स्टिल इट इज करेक्ट, क्योंकि अगर 4 कार्बन है और उसमें आपको डबल और ट्रिपल दोनों ही रखना है तो उसके एक ही पॉसिबिलिटी है, दे हैव टू बी ऑन ऑल्टरनेट फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन. क्योंकि अगर आप एक और पॉसिबिलिटी सोचते हो कि डबल और ट्रिपल साथ में रख दो तो चलेगा क्या? No. Carbon No. valence will Valence will become 5. पेंटावेलेंट हो जाता है. मतलब एक कार्बन पे डबल और ट्रिपल साथ में कभी भी नहीं हो सकता, यानी ये पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट है. तो अगर कोई सिचुएशन में एक ही पॉसिबिलिटी है तो चाहे नंबरिंग करो या ना करो, डिफॉल्ट हो गया कि नहीं? Yes. विद डबल बॉन्ड हैविंग द प्रायोरिटी ऑफ कोर्स. तो आप ब्यूट 1 in 3-ine लिखो या ना लिखो वो चलता है. ये चीज मैंने याद रहेगा तो अल्डिहाइड के लिए बताया था. अल्डिहाइड एसिड, इसमें नंबरिंग करने की जरूरत है क्या? No, sir. Oh. नहीं, क्योंकि अल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप बाय डिफॉल्ट विल ऑलवेज बी ऑन द फर्स्ट कार्बन, ऑलवेज. तो अब यहाँ पर आप इसको 1 लिखो या ना लिखो चलेगा ना. प्रोपेनॉल इज डिफॉल्ट नेम. गॉट इट? Yes, sir. Next, the common name of the following alkyl group is? No, yeah. So maximum of them have kept their camera off. They don't want to start their camera. Remove them. Almost 12 to 15 students. Can I remove them? Yeah, remove them. Okay, thank you. On नहीं किया तो निकाल दो सीधा. Don't allow them. हाँ. Now alkyl group को नेम करने के लिए मैंने आपको कुछ questions बोला था पूछने के लिए अपने आप से. What is the first question to be asked? Where is the radical? Is the radical. Where is the radical? Correct. So where is the radical? Yes. Secondary. Yes, sir. Secondary. Secondary. And then दूसरा question था कितने कार्बन है? गब्बर वाला. 4. Four. So the answer 4 is कार्बन है. secondary butyl. Right. चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, मुझे बताओ वो कौन से अल्काइल ग्रुप को बिलोंग करता है. Tell me the name. Primary. Neo. जो थर्ड बोला ना वो गधा है. सबसे पहला Neopentyl. क्वेश्चन Neopentyl. प्राइमरी पे है तो टर्शरी क्यों आएगा भाई? प्राइमरी में स्ट्रेट टी या प्लस?
स्ट्रेट होगा तो एन, टी होगा तो आइजो और प्लस होगा तो नियो लिखो। तो इस केस में ये होगा नियो। और कितने कार्बन है? 5. तो आ गया ना नाम। तो अल्काइल में कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, खाली 2 क्वेश्चन अपने आप से पूछो, वेयर इज द रेडिकल और कितने कार्बन है, बस। चलो नेक्स्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप इज कॉल्ड लाउडली, Ethanol. Ethynyl. because this group is derived from Ethene. Eth- Ethene. इथीन में से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो ये ग्रुप मिलता है ना, इस ग्रुप को इथिनाइल बोलेंगे। और इसी इथिनाइल ग्रुप को कॉमन नेम में विनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनाइल। विनाइल के साथ Cl लगा दो तो क्या बन जाएगा? विनाइल क्लोराइड। और उसका पॉलीमर बनाओगे तो Polyvinyl chloride. PVC यूज्ड इन पाइप्स, है ना। तो उससे हमेशा ये याद रखने का, विनाइल ग्रुप, इथेनाइल और विनाइल एक ही होता है, ठीक है। So amyl is which हाँ बताता हूँ, आंसर इज इथेनाइल। अब अमाइल इज सेम एज पेंटाइल। अमाइल इज जस्ट एन ऑल्टरनेट नेम फॉर पेंटाइल। मतलब अगर कहीं पे न्यू अमाइल लिखा हुआ है तो यू विल रीड इट एज Pentyl. न्यू पेंटाइल, which is same. Pentyl and amyl are same. Remember it. By the way, isoethyl जैसा कोई स्ट्रक्चर होता है क्या? No. आइसो नॉट पॉसिबल। फिजिबल ही नहीं है। और टर्ट इथाइल भी पॉसिबल नहीं है। नॉट पॉसिबल। तो ये तो वैसे ही देख के रूल आउट कर देना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब एलिसाइक्लिक मतलब साइक्लिक रिंग वाले, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सीन, ये सारे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइड चेन और द एसाइक्लिक चेन इज द मेन चेन? साइड चेन या एसाइक्लिक चेन इज द मेन चेन। अब अगर आपके पास कोई साइक्लिक रिंग है और उसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो ये वाले सब्स्टिट्यूएंट को ना साइड चेन बोलते हैं। जैसे साइड कार होता है ना, वैसे साइड चेन, ठीक है। तो मिथाइल इज अ साइड चेन। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि इन कंपाउंड्स में से, 4 ऑप्शंस में से किसमें साइड चेन आपका मेन चेन बन रहा है। तो अब फर्स्ट केस में साइक्लिक रिंग का 5 कार्बन है और साइड चेन का 3 कार्बन और 2 कार्बन है। बताओ पेरेंट कौन बनेगा? Cyclic. साइक्लिक चेन। साइक्लिक, क्योंकि ज्यादा कार्बन है। नेक्स्ट केस में साइक्लिक का 5 कार्बन है और ओपन चेन में 5. भी 5 कार्बन है, 5. ठीक है। और इस साइक्लिक चेन के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट है जो कि पूरा ओपन चेन होगा, और अगर इसको मैं पेरेंट कंसिडर करूं तो इसमें भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो whenever the cyclic and the open chain has same carbon with same number of substituent, then in such case cyclic will be given the priority. रूल समझा? Yes. अगर साइक्लिक और ओपन चेन का नंबर ऑफ कार्बन सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो साइक्लिक को प्रायोरिटी जाएगा। अब थर्ड केस में सिचुएशन क्या है देखो। 5 carbon and 2 substituents. हाँ, साइक्लिक में 5 कार्बन है और एक सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन ओपन चेन में अगर आप देखते हो तो 5 कार्बन और 2 substituent. 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं कि नहीं? देखो नंबरिंग अगर मैं करूँ तो 1 2 3 4 और 5, तो ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है और ये पूरा एक साइक्लोपेंटाइल सब्स्टिट्यूएंट है, राइट? Yes, sir. Yes. So now the priority will go to साइड चेन। Main chain. मतलब side chain. the side chain. That's why this is the answer. समझा? Yes, sir.
और फोर्थ में देखो साइक्लिक का 5 है, इसका 3 है और इसका भी 3 है, तो ऑफ कोर्स इसमें भी साइक्लिक आपका पेरेंट बनेगा क्योंकि ज्यादा कार्बन। तो क्लैश होता है, सब्स्टिट्यूएंट चेक करो, उसके बेसिस पे पेरेंट चेन को फाइंड करो। सिंपल। Yes, sir. अच्छा, कैन यू कंप्लीट द नेम ऑफ दिस? अरे 2 पे मिथाइल है और 2 पे ही Two साइक्लोपेंटाइन। Pentyl to methyl. एंड पेरेंट Pentane. पेंटेन। हो गया ना? क्लियर है? Sir, dimethyl ना? टू डाइमिथाइल, एक ही तो मिथाइल ग्रुप है, ये वाला सेकंड कार्बन पे एक ही मिथाइल है। ये वाला कार्बन तो पार्ट ऑफ द पेरेंट चेन है ना, फर्स्ट कार्बन नंबर है देखो, राइट? Yes. Next, similar question, in which of the following cyclic chain is the main chain? Second. Second. Both Second, have same. second. फर्स्ट केस में डबल बॉन्ड है ओपन चेन में, नंबर ऑफ कार्बन 2 ही है, बट सिंस डबल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप, दिस विल बिकम योर पेरेंट एंड दिस एंटायर विल बिकम अ Substituent. क्या नाम होगा इसका? साइक्लोहेक्साइन। ठीक है। नेक्स्ट में दोनों ही में डबल बॉन्ड है, बट अब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से प्रायोरिटी दी जाएगी। ये 6 कार्बन का है, ये 2 कार्बन का है, तो द साइक्लिक चेन हियर विल बिकम द मेन चेन, तो आंसर 2 है। थर्ड में ओपन चेन बनेगा क्योंकि It has Two two double. double 2 bonds. डबल बॉन्ड्स हैं। और अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या आएगा? Cyclohexene. हेक्सीन। हेक्सीन Cyclohexenol. आइल लगा दो बस। जैसे अब अगर नंबर करूं तो 1 2 3 एंड 4, दिस विल बी कॉल्ड 1 साइक्लोहेक्सिनाइल ब्यूटा 1,3 डाइन, करेक्ट? Yes, sir. और फोर्थ में भी ये वाले में डबल बॉन्ड है, तो इसको मेन चेन कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज, बोलो मेन चेन कौन? Cyclic. साइक्लिक। नंबरिंग क्लॉकवाइज करें कि एंटी क्लॉकवाइज करें? Anti-clockwise. So you have to start from this particular double bond, 1 2 3 4 5 6, correct है? Anti-clockwise. So what if we do the other way? अरे हाँ, ये क्लॉकवाइज किया है मैंने, so clockwise हाँ में sir, 6 आ रहा है। anti-clockwise. Yes, sir. Anti-clock. हाँ, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज करूँ तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पर आपके सब्स्टिट्यूएंट का नंबर 5 मिल रहा है और प्रीवियस केस में 6 मिल रहा था, तो यही करेक्ट है। एंड नाउ कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस ग्रुप? Ethanol. यही तो इथेनाइल, विनाइल ग्रुप। IUPAC में इथेनाइल बोलना है, तो करेक्ट आंसर होगा 5 इथेनाइल साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइन। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. फाइन, सो आई विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। अब नेक्स्ट सेशन के लिए आपका होमवर्क होगा टू सॉल्व ऑल द MCQs फ्रॉम सेक्शन A टिल सेक्शन E, फ्रॉम द MCQ बुकलेट सेक्शन E। आगे इनफैक्ट आप सेक्शन F वाला भी स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज नॉमेनक्लेचर के रूल्स आपको ऑलरेडी पता है, प्रीफिक्स सफिक्स मैं दे चुका हूँ। आई विल डिस्कस देम इन द नेक्स्ट सेशन, बट अगर आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट हो तो आप ये सेक्शन F और सेक्शन G भी सॉल्व कर सकते हो।
ऑफिशियली होमवर्क सेक्शन ई तक है, सेक्शन जी तक सॉल्व करना है, कर लो. You will feel more confident when I will discuss the MCQs. ठीक है? Yes, sir. And please complete the homework regularly. And next week से Google Form टेस्ट भी चालू होगा. वहां पे जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका जो भी कंटेंट है उसके 10 to 15 MCQs रहेंगे. ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Bye-bye. sir. Thank you. Yes. Bye, Bye, sir. Thank Thank Bye, you. sir. Thank you so